ਹੈਲੋ ਟੂ एवरीवन। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਇਨ ਯੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਾਈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਲਈ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, LCR ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। LCR ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ ਕਰੰਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੀਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। that is 1/√L into C। L ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, L is inductance through the inductor and C is the capacitance of the capacitor। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਓਮੇਗਾ 1 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮੇਗਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮੇਗਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 1/√, ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1/√2 ਇੰਟੂ I ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਐਟ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ 1। ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ R² ਦੇ ਨਾਲ। R² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ 1L ਮਾਈਨਸ 1/ਓਮੇਗਾ 1C ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮੇਗਾ 1 ਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਇੰਟੂ L ਮਾਈਨਸ 1/ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਇੰਟੂ C। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ L। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ R/2L। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ L/R ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ L/R ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 2 ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਹੈ ਇਹਨੂੰ I ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ I ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ I ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ L ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ L ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਈ L ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ R ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
आई नाल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो आई इंटू काई एल की हुंदा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आई इंटू आर की हुंदा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ओम्स लॉ तो आंदी है। ठीक, तो ये साडा हुण जिहड़ा है क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर आ गया। ठीक है जी, जिहड़ा ये फैक्टर है रेजोनेंट LCR सर्किट का, हुण असीं इहनूं डिफाइन कर रहे हैं की होएगा एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर टू द अप्लाइड वोल्टेज। जिन्ना वोल्टेज ड्रॉप होया इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है तो दोनों चीज़ां सेम हो गई हुई हैं, डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, तो असीं सिंपल दोबारा उही फॉर्मूलाज नूं रीइंट्रोड्यूस किया होया। हुण अगे असीं पढ़ना है जिहड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है एट हाई फ्रीकुएंसीज द फैक्टर इज़ क्वाइट लार्ज एंड हैंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर विल बी लार्ज। जे यह फैक्टर वड्डा होएगा तो ऑबवियसली उहदा न्यूमीनेटर जिहड़ा है वो वड्डा होएगा। न्यूमीनेटर च की आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो वह भी ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो साडे कोल जिहड़ी LCR सीरीज सर्किट आ रही है वो वोल्टेज मैगनीफिकेशन वास्ते यूज़ हो सकती है। ठीक है, जिथे असीं चाहते हैं कि वोल्टेज मैगनीफाई हो जाए उहदे विच यह LCR सीरीज सर्किट जिहड़ी है वो यूज़ हो सकती है। हुण ये तो बेटा है ना तुहाडी आपदी सिंपल मैथमैटिक्स है, जे ओमेगा नॉट की वैल्यू ये आंदी है तो तुसीं क्यू दी या क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ये कढ सकते हैगे होंगे 1/r √L/C, क्योंकि क्यू इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट L/r। तो तुसीं की कीता है ओमेगा नॉट की वैल्यू इत्थे पुट कर ली 1/√LC अंडर रूट, तो आया होया तो अंडर रूट ते अंडर इत्थे L है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो की आ गया साडे कोले क्यू फैक्टर की वैल्यू इस एक्सप्रैशन नाल आ गई। ठीक है, ये तुहाडे बेटा किते ना किते कोई न्यूमैरिकल वगैरह विच यूज़ हो जाती है। ठीक है जी, हुण अगे साडे कोले बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आंदा हैगा कि एनर्जी जिहड़ी है वो किवें स्टोर हो रही है। सानू फॉर्मूला पता होने चाहिए कैपेसिटर विच भी ते इंडक्टर विच भी। ठीक है, तो उहदे कुछ मेन पॉइंट्स ने जिहड़े सानू पता होने चाहिए हैं। ठीक है, वो आपां हुण स्टडी करांगे। सब तो पहलां आपां एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ांगे। ठीक है, जिहड़ी एनर्जी स्टोर हो रही है उहदा फॉर्मूला की हुंदा है ½ Q² / C। ठीक है, जो कैपेसिटर का केस है, एक कैपेसिटर का केस है। ठीक है, तो जिहड़ी एनर्जी स्टोर हो रही है दैट जिहड़ा आपां जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है आ वाला ½ CV²। C इज़ कैपेसिटेंस, V इज़ वोल्टेज। ठीक है, हुण कुछ पॉइंट्स जिहड़े आपां याद रखने हैं या अपने ध्यान विच रखने हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ सोर्स होएगा ਜਿਹੜਾ EMF ਦਾ सोर्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ एनर्जी है निकल के साडी कैपेसिटर विच स्टोर हो रही है, एक्सट्रा कुछ नहीं आ रहा। नैक्सट पॉइंट है जिहड़ी एनर्जी रिजाइड कर रही है कैपेसिटर दे विच वो किहड़ी फॉर्म विच है, वो इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म विच है। कैपेसिटर दे विच एनर्जी जिहड़ी है वो इलैक्ट्रिक एनर्जी या इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म विच हुंदी है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सोर्स मतलब AC सोर्स जिहड़ा होएगा फर्स्ट हाफ साइकिल विच जिहड़ी है एनर्जी है वो स्टोर करवाएगा कैपेसिटर विचों। ठीक है, हुण ये एनर्जी जिहड़ी है वो सोर्स विचों कित्थों आ रही है, वो सोर्स विचों आ रही है फ्रॉम सोर्स। ठीक है, कैपेसिटर विच एनर्जी जिहड़ी स्टोर होएगी फर्स्ट हाफ विच वो सोर्स तो आ रही है, तो जदों नैक्सट साइकिल स्टार्ट होएगा तो जिहड़ी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कैपेसिटर रिटर्न कर देगा सोर्स नूं। ठीक है बेटा, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहानूं मतलब पता होना चाहिए भी ये हो की रहा, क्योंकि तुहाडे नैक्सट टॉपिक विच ये यूज़ होएगा। की हो रहा है जदों आपां ऑल्टरनेटिंग सोर्स लै रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब साडे कोल जिहड़ी वेव आ रही है करंट की वो इस तरीके नाल आ रही है। ठीक है, पहला पॉजिटिव आ रही है फिर नैगेटिव आ रही है। फर्स्ट हाफ मतलब जदों पॉजिटिव वाली वेव आ रही है, ये असीं सपोज किया, नैगेटिव वाली भी पहला स्टार्ट कर सकते हो। जदों पॉजिटिव वाली आ रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जदों आएगा तो जिहड़ी एनर्जी है वो सोर्स तो मतलब कि तुहाडे जिहड़ा EMF का सोर्स है, तुसीं स्विच लई है जित्थों भी तुसीं EMF का सोर्स लै रहे हो, वो सोर्स तो जिहड़ी एनर्जी आ रही है वो कैपेसिटर दे विच जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जदों नैक्सट साइकिल आएगा मतलब आह नैगेटिव साइड डायरैक्शन वाला जदों साइकिल आएगा
ਉਦੋਂ ਇਹੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਇੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ Li²। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, that is also at the expense of energy of the source। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਦੇਗਾ ਓਨੀ ਹੀ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਇੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, the same amount of energy will be returned to the source। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਸੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਓਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਵਾਪਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ LC ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ LC ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, LC ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ L, ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ C ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ, ਵੰਸ ਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਲਿੰਕਡ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ EMF ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ EMF ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
बट ऑपोजिट पोलैरिटी नाल, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF है तो पोलैरिटी उल्टी हो चुकी है। हुण इंडक्टर विचों कैपेसिटर कोले गया, ठीक है, पर उहदी पोलैरिटी जिहड़ी है वो उल्टी हो गई, ठीक। एवें करदे करदे इंडक्टर विचों सारे दा सारा जिहड़ा चार्ज हैगा गा वो कैपेसिटर कोल चले जाएगा, कैपेसिटर कोले गया, कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो गया, एवें फिर कैपेसिटर ने की करना है, दोबारा फिर डिस्चार्ज होना है तो इंडक्टर कोल चली जाएगी। तो ये प्रोसैस जिहड़ा है ये रिपीट करता रहिंदा है, ठीक है, पर हर बारी पोलैरिटी ऑपोजिट हुंदी रहिंदी है। पहला कैपेसिटर की पोलैरिटी एक साइड पॉजिटिव सी, दूसरी साइड नैगेटिव सी, फिर पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई, उल्टियां हो गई, ठीक है। हुण जे कोई रजिस्टेंस नहीं है तो जिन्नी एनर्जी कैपेसिटर विच स्टोर हुई सीगी वो इंडक्टर विच जाके कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। तो जिन्नी ही एनर्जी मैगनैटिक फील्ड की फॉर्म में इंडक्टर च सीगी वो वापस कैपेसिटर को चली जाएगी, ठीक है। वो वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म जिहड़ी है चेंज इंटर कन्वर्ट होंदी रहिंदी हैगी तो यह प्रोसैस रिपीट करता रहिंदा है। इस प्रोसैस नूं रैपीटेशन नूं असीं की कहने हैं LC ऑसिलेशनस, ठीक है। हुण जिहड़ियां ये रैपीटेशन हो रही है तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक ऑसिलेशनस प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। ये इलैक्ट्रोमैगनैटिक ऑसिलेशन की कोई फ्रीकुएंसी होएगी, वो फ्रीकुएंसी इज़ गिवन बाय 1/2 पाई √L × C, ठीक है। पर यह तो हो नहीं सकता कि तुहाडे कोले कोई भी सर्किट होवे तो कोई रजिस्टेंस ही ना होवे, जीरो रजिस्टेंस वाला कोई सर्किट नहीं हुंदा, कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होएगा, कुछ ना कुछ रजिस्टेंस दे करके जिहड़ा है एम्पलीट्यूड ऑफ दीज ऑसिलेशनस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। इनू असी जे रिप्रजेंट करना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ तो किवें होणगियां, एवें करके हौली 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 ऑसिलेशनस दी एम्पलीट्यूड जिहड़ी है वो घटदी जाएगी, ठीक। तो जिहड़ी ये इलैक्ट्रिक एनर्जी जिहड़ी है ये डिसिपेट होएगी, ये हीट एनर्जी की फॉर्म में होएगी। यूजली जो आप सर्किट्स देखते हैं बेटा तो वो की हुंदी है हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। उस केस में की हो रहा हुंदा है कि तुहाडी इलैक्ट्रिक एनर्जी जिहड़ी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके खत्म हो रही हुंदी है, तो उहदा कोई बेनीफिट नहीं आ रहा हुंदा, ठीक है। नैक्सट टॉपिक जिहड़ा आपां करना है वो है पावर ऑफ एन AC सर्किट। पावर ऑफ एन AC सर्किट बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस करके हो जाता है क्योंकि तुहानूं इहदे ते ना छोटे छोटे न्यूमैरिकल आ जाते हैं 1 1 2 2 मार्क्स के, जिहड़े कि तुसीं आसानी नाल कढ सकदे हो, ठीक है जी। हुण AC सर्किट की पावर कढण वास्ते तुहानूं सब तो पहला की चाहिए, AC सर्किट चाहिए, ठीक है। एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उन्होंने असीं डिफाइन किवें करदे हैं, इंस्टैंटेनियस पावर ऑफ दी सर्किट। क्यों? क्योंकि AC सर्किट विच की हो रहा है कि बार बार इलैक्ट्रिक EMF ते उहदा करंट चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है। तो असी पावर भी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम ते कढ सकते हैं क्योंकि बार बार चेंज होंदी है, ठीक है। इस करके असी की करते हैं, असी ज़्यादा बैटर लैंदे हैं कि असी एवरेज पावर कढ लीए, ठीक। हुण असी पावर नूं डिफाइन किवें करना है, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टैंटेनियस EMF एंड इंस्टैंटेनियस करंट, ठीक है। असी सपोज कर लिया असी पहला भी है ना EMF ते करंट दी वैल्यूज़ लईआं होईआं, असी उही इक्वेशनस लै लियां। EMF असी E0 sin ω t लै ली, करंट जिहड़ा है I0 sin ω t प्लस फाई लै लिया। फाई की है, इन्हां दोनों दे विच दा फेज एंगल, ठीक है। जिस हिसाब का सर्किट होएगा उस हिसाब का सानूं पता लग जाएगा कि फेज एंगल कितना डिफरेंट है। जे कल्ला रजिस्टर लग्या होया है तो फाई की वैल्यू 0 हुंदी है, जे इंडक्टर लग्या होया है तो की करदा हुंदा है +90 हुंदा है, जे कैपेसिटर लग्या होया तो -90 हुंदा है, ठीक। हुण असी ओमेगा की वैल्यू सानूं पता है 2/T हुंदी है, T की है साडा टाइम पीरियड ऑफ AC, क्योंकि असी पावर कढनी है, पावर का फॉर्मूला की हुंदा है, पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो सानूं की कढना पेगा वर्क कढण लई साडे कोले फॉर्मूला की हुंदा है, वर्क इज़ इक्वल टू V × I × T, ठीक है। वोल्टेज इत्थे की है E, I की है करंट, टाइम कितना लै रहे हैं असी DT, बिल्कुल स्मॉल टाइम लै रहे हैं DT, उहदे विच कितना वर्क किया गया है DW,
ठीक है, यही सारा का सारा काम इन दी फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ई दी वैल्यू असी पुट करती ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई दी वैल्यू पुट करती आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। हुण टोटल वर्क डन जे असी कढना है तो वो वास्ते सानू इंटीग्रेशन करनी पेगी, पर साडे कोले इत्थे फॉर्मूलाज जिहड़े हैं ओमेगा टी ते फाइव दी टर्म्स विच आ रहे हैं, तो असी थोड़ी जी ट्रिग्नोमैट्री यूज़ करनी है। आह 3 फॉर्मूलाज ने बेटा प्लीज़ आप करके देखियो। ठीक है, जो तुसी सारा कुछ सिंपलीफाई करोगे तो तुसी आह फॉर्मूलाज लगाने हैं जिहड़े कि असी मैथमैटिक्स च करते हैं। ठीक है, आह फॉर्मूलाज लगाने तो बाद साडे कोले सिंपलीफाइड इक्वेशन आ जाती है वर्क डन दी ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन फाइव इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, असी इसे फॉर्म में क्यों लिया वो तुहानू इंटीग्रेशन विच स्टैप विच पता लगेगा। ठीक है, तो असी हुण टोटल एनर्जी कंज्यूम फाइंड करनी है, उन्होंने कढ़न वास्ते सानू की करना पेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम पीरियड टी कैपिटल टी तक। ठीक है, जो असी सारा कुछ इंटीग्रेट करते हैं कॉस फाइव या साइन फाइव जोड़े है वो तो टी टाइम के उपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो की होणगे वो कॉन्सटेंट होणगे, तो इंटीग्रेशन तो बाहर आ गए। इंटीग्रेशन विच की बचा डी टी या कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी या साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। हुण असीं पहलां इंडिविजुअली इन्हां दी वैल्यूज़ फाइंड कर लैंदे हैं। डी टी की इंटीग्रेशन कैपिटल टी दे इक्वल होगी, सिंपल इंटीग्रेशन है। जो तुसीं कॉस ऑफ 2 थीटा कढ़ रहे हो 2 ओमेगा टी या साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी कढ़ रहे हो, तो बेटा जो तुसीं इहनूं सिंपलीफाई करते हो ना ओमेगा की वैल्यू पुट करते हो 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो उस टाइम ते तुहाडे कोले नैट वैल्यू जिहड़ी है वो 0 हो जाती है। प्लीज़ इनू फाइंड करने की कोशिश करनी है। इस केस विच की हो रहा है जो तुसीं सिंपल इंटीग्रेशन करके देखो कॉस ऑफ 2 थीटा दी या जिवें भी, तो उहदे विच ओमेगा की वैल्यू पुट कर लियो। जो सिंपलीफाई कर लोगे ना इनू ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो आ वाली टी दे नाल की होएगा एक बारी मल्टीप्लाई बाय 0 होएगा। लिमिट्स भी पुट करनी होंदी है ना, लिमिट्स जो पुट करते हो तो 0 है या कैपिटल टी। ठीक है, जो तुसीं ये सारिया वैल्यूज़ पुट करोगे तो तुहाडे कोले नैट रिजल्ट जिहड़ा इन दी एंड रिजल्ट दोनों केसिस विच 0 आ जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद तुहाडे कोले जिहड़े एक्सप्रैशन बच जाता है वो है ओमेगा इज़ इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, ये तुहाडा टोटल वर्क डन है। ठीक, टोटल वर्क डन निकल आया तो पावर कढ़ सकते हैं। पावर की होंदी है वर्क अपॉन टाइम, तो असी एक्सप्रैशन नूं ही रीअरेंज कर लिया तो साडे कोले पावर की आ गई ई नॉट अपॉन आई नॉट 2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। हुण इस 2 नूं असी 2 पार्ट्स विच डिवाइड कर लिया √2 ते √2। क्यों? क्योंकि ई नॉट अपॉन √2 ये किहदे इक्वल हुंदा है RMS वैल्यू दे, RMS ऑफ EMF। आई नॉट अपॉन √2 की हुंदा है RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो साडे कोले पावर दी एक बहुत आसान जी एक एक्सप्रैशन बन गया RMS वैल्यूज़ दी फॉर्म विच। ठीक है, हुण ये जिहड़ी पावर है ये डिपेंड कर रही है फाई दे उपर। हुण सानू पता है फाई फॉर रेजिस्टेंस की हुंदा है 0, तो साडे कोले पावर की आ गई EV इंटू IV। जे असी कल्ला इंडक्टर लैने हैं तो साडे कोले फाई की हुंदा है 90 डिग्रीज, तो पावर की होगी 0। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ 90 इज़ 0। उस तो बाद जे साडे कोले सर्किट विच सिर्फ C हुंदा है, कैपेसिटर है लग्या होया, तो फाई की है -90, तां भी साडे कोले पावर की होगी 0। ठीक है, तो जदों साडे कोले सर्किट है LCR तीनों चीज़ां लगियां होईयां तो साडे कोले कॉस ऑफ फाइव। बेटा जदों आपां LCR सर्किट बनाया सीगा तो सानू उत्थे साडे कोले राइट एंगल ट्रायंगल टाइप्स बन जांदी हैगी, तो उत्थे कॉस ऑफ फाइव की आ गया R अपॉन √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C टू होल स्क्वायर। तो साडे कोले उस हिसाब नाल पावर दी वैल्यू आ गई। ठीक है, हुण इस केस विच जे असी रेजोनेंस कंडीशन अपलाई करते हैं तो भी देखो कि तुहाडे कोले पावर की बन जाती है कि पावर तुहाडी रेजिस्टेंस की पावर दे इक्वल ही रह जाती है, क्योंकि ओमेगा नॉट L माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट C की हो जाते 0 हो जाते हैं, तो R ते R कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लैक्चर। आपदे सारे डाउट्स प्लीज़ कमेंट सैक्शन में लिख दो ताकि असी उन्होंने डाउट क्लास में जरूर डिस्कस कर लीए। थैंक यू वेरी मच।